Hi, welcome to the new episode of Sportsy. Let's aim sports. Today we have with us an Indian middleweight boxer, a strong and powerful girl from Haryana who has secured her berth for Tokyo Olympics in 75 kg category in boxing. Pooja Rani, a Lakshya Sports Foundation athlete. The journey to the glory wasn't easy for Pooja. It took her a year to find the courage to join Hawa Singh Boxing Academy in her own town, and she kept it as a secret from her father, who she knew that he will not approve for her to play boxing. She would hide her injuries from the sport so that her father would not find it out, staying over at a friend's house or her coach's house, who really helped her in the whole process. But yes, what we say after that has been a history. Pooja had to fight a lot during the early days, but in 2012, with her national achievement, she came to the limelight and then success followed. Pooja's coach, Sanjay Kumar Sherraw, had to plead with her family to allow her to compete. Even so, it took nearly 6 months to convince her parents to allow her to box professionally. Her first major came in 2009 when she bagged a silver medal, defeating the leading Haryana boxer Priti Baniwal in the state championship, the National Youth Boxing Championship in 2009. She commented that her family became supportive of her career after the win, and we get to hear that in the chat that follow. Today we have with us a bronze in Asian Championship, a bronze in Asian Games, silver in Asian Championship, gold in South Asian Games, gold at Asian Championship, which she calls as her best achievement yet, and a Tokyo Olympic qualified boxer with us. She's an income tax inspector with Haryana government. Please welcome Asian champion, South Asian champion, Tokyo Olympic athlete of Lakshya Sports, Rani of Indian boxing, Pooja Rani. Thank you for watching, thank you for liking, and thank you for sharing. But please do subscribe to Sportsy Says and help us spread the word about Sportsy. We go with the same handle, Sportsy Says, across all the social media platforms. Our today's episode is in association with Lakshya Sports. Started in 2009 with a mission to nurture budding talent in sports, Lakshya aims to bridge the gap between the aspiration and realization of sports talent in the country. A professionally managed, not-for-profit organization, Lakshya has extended holistic support to more than 80 sports persons from 8 different disciplines. Lakshya ensures world-class training to the players that will help in enhancing their performance in the respective sports. A majority of Lakshya players have represented India at the highest level in the international circuit and have won many accolades, making the country proud. 5 of their players have represented India in 2012 London Olympics, 7 at Rio 2016 Olympics, and 2 at the Gold Coast 2018 Commonwealth Games in Australia. With a vision to motivate players in achieving Olympic glory, Lakshya is here to ensure exceptional contribution of India on the international platform. To achieve this vision, they seek your support to join the noble cause and contribute in your own way. Please visit lakshyasports.com and contribute in this journey. Help them achieve the vision to aid the athlete in achieving Olympic glory. Hi Pooja, it's so great to have you on a platform. आपको मिलके बहुत अच्छा लगा एंड सबसे बड़ी बात तो सबसे मजेदार बात तो आप इंडिया की फर्स्ट एथलीट थी जो ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई तो उसके लिए बहुत बधाई है उसके बाद आगे बहुत नंबर बढ़ा अपना लेकिन फर्स्ट तो आप थी सो इसलिए हमारे को आज बात करने को और ज्यादा खुशी हो रही है सो इट्स ग्रेट टू हैव यू ऑन द प्लेटफॉर्म थैंक यू फॉर द व्यूअर्स हमारे साथ है इंडियाज मिडिल वेट बॉक्सर 75 केजी कैटेगरी वाली जो टोक्यो ओलंपिक को ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है पूजा रानी लक्ष्य स्पोर्ट्स फाउंडेशन एथलीट पूजा की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है जो ग्लोरी अचीव की है उसके पीछे बहुत अलग अलग किस्म का हार्डवर्क है और थोड़ी अलग स्टोरी भी है सो पूजा सबसे पहला क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म के आने के बाद तो हम लोगों ने जो सुना हुआ है कि आपने बॉक्सिंग चालू की वो छुप छुप के और बिना किसी को बताए आप कंपटीशन भी खेलती थी क्योंकि सोच रही थी कि अगर ये घर पे पता चल गया तो मेरा खेलना बंद कर देंगे और घर वालों पे एक ही पक्का था कि बॉक्सिंग अच्छे लोग बॉक्सिंग नहीं खेलते सो पूजा ये सब कैसे चालू हुआ और आपका वो पहला पीरियड कैसे था देखिए आफ्टर 12th मैंने जो है बॉक्सिंग स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था बॉक्सिंग में क्योंकि मैं खुद भी बॉक्सिंग नाम से कोई भी होगा वो बॉक्सिंग नाम से एक बार जरूर रहेगा क्योंकि इसमें साफ साफ पता है कि बॉक्सिंग है तो मारना है और
अगले को भी मारना है और खुद को भी पिटना है, तो साफ है ये। तो इसमें क्या हुआ, जो मेरी लेक्चरर थी, जो मेरे कोच की वाइफ हैं, वो मेरी लेक्चरर थी। उन्होंने मेरे को बॉक्सिंग के बारे में बताया। उन्होंने मेरी हाइट देखी तो बोली कि हाँ, तुझे बॉक्सिंग में जाना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को बॉक्सिंग में जाने के लिए बोला। और मेरे फादर जो है वो हरियाणा पुलिस में थे, अभी वो रिटायर हो चुके हैं। जब मैंने घर में बताया करीब 4 या 5 दिन बाद कि मैं बॉक्सिंग की ट्रेनिंग अभी मैंने शुरू कर दी है, तो मेरे फादर ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि बॉक्सिंग नहीं, चाहे तो कोई भी गेम खेल सकती है लेकिन बॉक्सिंग नहीं। और फिर बाद में भी मेरी मम्मी ने भी पूछा कि इसमें कहाँ-कहाँ मारते हैं? तो मैंने एरिया बताया कि जो बी बॉक्सिंग का जो एरिया है, तो फिर मेरी मम्मी भी हैरान हो गई थी कि इसके बाद रह क्या जाता है? पूरी बॉडी तो आ गई इसमें। तो ये सब बातें थी कि मेरे फादर ने साफ मना कर दिया था कि बॉक्सिंग नहीं, चाहे तू कोई भी गेम कर सकती थी बट बॉक्सिंग नहीं। लेकिन फिर भी मैं करती रही। और मैं काफ़ी बार ऐसा था कि मेरे को चोट भी लगती थी। तो उस टाइम पे भी मैं मेरे कोच के ही घर पे रह जाती थी। जो मेरे कोच की जो वाइफ है, उनसे मैं फ़ोन करवाती थी घर पे कि बोलो कि ये मेरे पास रह रही है, क्योंकि मैं अगर घर जाऊँगी, मेरी चोट देखेंगे, तो मेरी बॉक्सिंग पक्का छुड़वा देंगे। अरे वाह! तो ये करीब 6 मंथ तक ऐसा चलता रहा। उसके बाद में जब उनको लगा कि हाँ, इसी में इसका करियर है, ये करना चाह रही है और इसकी अच्छी अचीवमेंट भी आ रही है, हुँ। तब उन्होंने मेरे साथ देना शुरू किया। ओह वाओ! मतलब वैसे 6-8 में तो आपने जो किया वो छुप-छुप के ही किया और जी। उसके बाद जो मुक्के मारे उसके उसके बदौलत आपने नेशनल्स, इंटरनेशनल, एशियन चैंपियनशिप, साउथ एशियन चैंपियनशिप वहाँ से लेके ओलंपिक तक का सफर तय किया एंड अभी तो कोई नहीं बोल सकता कि बॉक्सिंग क्यों कर रहे हो। जी, बिल्कुल नहीं। उसके बाद में बहुत जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा में मैं भिवानी से हूँ, तो वहाँ पे मतलब लोगों की सोच जो है लड़कियों के प्रति इतनी, अभी तो काफ़ी चेंज हो गई है, लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जो भी मेरे जो रिलेटिव्स थे, सबने मेरे फैमिली वालों को, मेरे मम्मी-पापा को मना किया कि इसको बॉक्सिंग मत करवाओ, अच्छा नहीं है लड़की के लिए, ऐसे-ऐसे। लेकिन मेरी जो मम्मी है, उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। और मेरे पापा को भी उन्होंने ही मनाया कि हाँ, इसके लिए बॉक्सिंग सही है। और उसके लिए हमारी तरफ से आपकी मम्मी को थैंक यू बोल देना कि नहीं तो हम इंडिया के लिए एक एक बड़ा बहुत बड़ा चैंपियन निकल जाता। सो पूजा ये तो जर्नी बहुत थी लेकिन जब आपने सोचा कि ओके आपने वैसे लेट चालू किया जैसे आपने बोला कि 12th के बाद चालू किया। सो यूजुअली एथलीट का जो टाइम फ्रेम होता है वो 7, 8, 9, 10, 11 मतलब अ, 10 से 15-16 की एज ग्रुप में ज़्यादा होता है। तो बिकॉज़ आपने पूरा कुछ लेट शुरू किया, इसका कुछ इम्पैक्ट हुआ आपके ऊपर? ग्रोथ स्लो हो गई या आपको ज़्यादा काम करना पड़ा टू कम्पीट एट द डिफरेंट लेवल? नहीं, मुझे बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि 6 मंथ के बाद ही मैंने नेशनल खेला, मैं स्टेट चैंपियन हो गई थी। मतलब मैंने पहला टूर्नामेंट खेला, उसी में मैं चैंपियन हो गई थी। हुँ, हुँ। और फिर उसके बाद मैंने नेशनल खेला और नेशनल में भी मेरा सिल्वर मेडल आया था। हाँ, उसके बाद 1-2 साल हाँ, मेरे को तैयारियाँ करनी पड़ी। और मैं उस टाइम पे क्या था, मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोच रही थी कि मैं ट्रेनिंग करूँगी, इससे मुझे जॉब मिलेगी या फिर कुछ और, मैं नेशनल खेलूँगी, मुझे गोल्ड मिलेगा तो उससे क्या हुआ? नहीं, उस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि मुझे बॉक्सिंग सीखनी है। तो इसलिए नॉर्मल जो टाइम होता है वो सुबह-शाम हम 2 से 3 आवर हम ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन मैं एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करती थी, मैं दिन में भी ट्रेनिंग करती थी। और जो हमारा टाइम होता था उसके बाद में भी मैं लगी रहती थी। मैंने बहुत एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करी उस टाइम पे। और वही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूजुअली जब जल्दी चालू करते हैं तो आपका वो एक पेस होता है ग्रो होने का। थोड़ा लेट चालू करने के से आपने एक्स्ट्रा ट्रेनिंग किया। आई थिंक वही तो एक चैंपियन मेंटालिटी थी आपकी कि आपको दिखाना था कि मैं ये करूँगी, मेरे को ये करना है और वो तिरंगा पहनना है। सो जी, बिल्कुल। सो पूजा ये सब जब चल रहा था कि आप एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रही थी, आपका कोच ने सब बहुत सपोर्ट किया, कोच की वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने सपोर्ट किया और एक एक आपने स्टेट चैंपियन हो गए, नेशनल्स कर लिया। ये सब करते वक़्त आपके लाइफ का एस्पिरेशन क्या था और आपको इंस्पायर किसने किया और कौन-सी जो चीज़ थी वो आपको हमेशा मोटिवेट करती रही? देखिए, मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि कोई मेरा जिससे मैं इंस्पायर हुई हूँ या फिर कोई ऐसा हो, कोई मेरा आइडियल हो, कुछ भी ऐसा नहीं था। मेरे को इवन इतनी भी नॉलेज नहीं थी कि मैं ऐसा करूँगी तो फिर बाद में उससे मुझे पैसे मिलेंगे या फिर मुझे जॉब मिलेगी।
बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मेरे साथ जो थी वो मेरे कॉलेज की एक लड़की थी, जो मेरे साथ ट्रेनिंग करने जा रही थी। तो वो मेरे से जल्दी सीख रही थी। तो उस टाइम पे मेरे को ये हो रहा था कि इसको आगे मुझे क्यों नहीं आया है? तो ये वो चीज़ें उस टाइम पे मेरी स्टार्ट हुई कि मुझे यूँ था कि उसको आ रहा है तो मुझे क्यों नहीं आ रहा? तो इसी चीज़ में कि मेरे को अब तो सीखना है, मुझे ये पक्का सीखना है। तो उसमें मैं लगी रहती थी और उसके बाद मेरा उसमें इंटरेस्ट बन गया और फिर स्टार्टिंग में उधर क्या था कि एक होता है कि एक नया-नया बच्चा आता है, तो जैसे आपने सुना होगा रैगिंग टाइप में, तो हाँ, यहाँ पे रैगिंग तो नहीं थी, लेकिन ऐसा था कि सभी मिलके जितनी भी लड़कियाँ थी, लड़के थे, उनमें से 1 या 2 लड़के को छोड़ के मैक्सिमम मुझे पिटवाना चाह रहे थे कि हाँ, ये लड़की पिटे, ऐसे करके, हाँ, ऐसा था। तो उस टाइम पे एकदम से मेरे को यूँ हो गया था कि क्योंकि स्टार्टिंग में अगर मार पड़ती है तो हम हैबिचुअल नहीं होते उस चीज़ के, तो मेरे को यूँ हो गया था कि नहीं, अब मुझे नहीं करनी है बॉक्सिंग, मैं छोड़ना चाह रही थी। तो फिर जो मेरे कोच की वाइफ है उन्होंने मेरे को समझाया और फिर मेरी एकेडमी में 2 लड़के थे जो कि काफ़ी अच्छी अचीवमेंट थी उनकी। तो उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट किया और फिर बाद में जितनी लड़कियाँ जो मुझे मतलब मारती थी या फिर मैं जिनसे कम थी, मैंने 1 महीने के अंदर उन सभी लड़कियों को हरा दिया था रिंग में। ओह और वाह! हाँ, उसके बाद लड़कियों के साथ तो मेरा कुछ ऐसा मतलब था ही नहीं कॉम्पिटिशन, तो फिर मेरी बॉयज़ के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। ओह! वेरी नाइस। ये अलग ही स्विच आ गया, मतलब एक सडनली अभी ये कॉम्पिटिशन खत्म हो गया, अभी लड़कों के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं एंड हाँ जी। ब आप, लेकिन ये सब हो रहा तब आपको कब फ़ील हुआ कि आपके कोच ने इतना आपको सपोर्ट किया? तो फर्स्टली तो उनको देखना चाहिए कि उनको लगना चाहिए कि आप में कुछ स्पार्क था। सो वो उन्होंने कब देखा और आपको कब फ़ील हुआ कि बॉक्सिंग मेरा करियर बन सकता है? अ, उन्होंने इससे जो मेरे कोच हैं उन्होंने इससे पहले इतना ध्यान नहीं दिया था। जब उन्होंने देखा कि मैं उन्हीं लड़कियों को 1 महीने बाद मैं बीट कर दी हूँ और उनको लगा कि ये लड़की अच्छा कर सकती है। तो उस टाइम पे जो क्या होता है कि हम एक रिंग में हम जब फाइट कर रहे होते हैं, तो चारों ओर जो बच्चे हैं वो देख रहे होते हैं। तो उस टाइम पे वो सब चिल्ला रहे थे मतलब मेरे को पिटवाने के लिए और सब चिल्ला रहे थे। तब मेरा कोच जो है वो रिंग में खड़ा होके यूँ बोला कि एक ये लड़की आई है तो तुम लोग इसको पिटवाना चाह रहे हो ऐसे और मैं हूँ इसके साथ और 1 साल के अंदर देख लेना, ये मतलब इस लड़की की अचीवमेंट तुम सब लोगों से अच्छी होगी, ऐसे करके हुआ अरे था उस वाह! टाइम पे। मतलब पूरा एक फ़िल्म ही चल रहा था। हाँ। लेकिन ये फ़िल्मी डायलॉग का आपके ऊपर कैसे प्रेशर आया? नहीं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, मेरे को यूँ था कि हाँ, कि कोई मेरे साथ है और मेरा हुँ, साथ दे रहा है ऐसे करके। क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरे साथ फर्स्ट डे से ये हो गया था कि अम, पता नहीं क्यों मेरे अगेंस्ट में रहे हैं सब। जैसे कि उस टाइम पे मेरे को सब पिटवाना चाह रहे थे। शायद मेरा थोड़ा-सा अलग रहना उन लोगों से जैसे उस टाइम पे मैं बाइक पे जाती थी ट्रेनिंग करने के लिए और ऐसे थोड़ा हाँ। शायद इन सब वजह से ऐसा हुआ होगा। ओके, लेकिन ऐसे बोलते हैं ना कि रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, उसके बाद जो हुआ है आज आप अचीवर्स हो, आप यहाँ तक हो। लेकिन ये जर्नी के लिए जो आपने लिया हुआ है, आपने बहुत सारे इंटरनेशनल मेडल्स इंडिया के लिए किए और इसके आगे भी बहुत करते रहेंगे। लेकिन ऐसा कौन-सा जो मोमेंट है, जो आपके लिए आज तक का सबसे बेस्ट मोमेंट रहा है, आपके प्लेइंग करियर का? वैसे तो काफ़ी रहे हैं मेरे जैसे कि स्टार्टिंग में 2012 में मेरा नेशनल चैंपियन होना, बहुत मुझे अच्छा लगा था। और अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूँ, तो 2019 में मैं एशियन चैंपियन बनी थी। और यस, वो जो मोमेंट था उसमें मैं फाइनल में मैंने वर्ल्ड चैंपियन को बीट किया था करेक्ट। और फिर मैं जो है एशियन चैंपियन बनी क्योंकि उस टाइम पे जो है मेरे से किसी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं कर सकती हूँ। जैसे मेरी जो सेमीफाइनल बाउट थी उसमें भी सबको मेरे ऊपर शर्त लग रही थी कि ये नहीं जीतेगी। एक ओह! बोल रहा था ये जीतेगी, ऐसा सब चल रहा था। तो मेरे को ये बातें पता चली कि किसी के थ्रू कि आप ऐसे बेट लगाई जा रही है और ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं। तो मेरे को उस दिन सेमीफाइनल के दिन यूँ था कि कैसे भी करके मुझे नहीं दिखाना कि मैं अच्छा खेलती हूँ या फिर मैं कैसा खेलती हूँ। मुझे बस जीतना है, चाहे मैं गंदा खेल के जीतूँ, मुझे जीतना है कैसे भी। तो उस दिन ये सब था। और फाइनल में हाँ, उस दिन जीत के मैं थोड़ा-सा सैटिस्फाई भी हो गई थी कि मतलब मेरे बारे में ऐसा सोच रहे थे और मैं जीती हूँ इस लड़की से। और उसके बाद जब फाइनल बाउट थी तो मेरे को यूँ था कि चलो मेरा सिल्वर मेडल तो पक्का हो ही गया है और ये वर्ल्ड चैंपियन है, इससे तो मैं नहीं जीत पाऊँगी। उसमें उस ओह! टाइम पे मेरा भी बहुत ऐसे डाउन चल रही थी मैं।
फिर जब जो मेरे कोच हैं उन्होंने मेरे को समझाया कि तू उन्होंने पूरा ऐसे समझाया कि उनके वो जो कोच है मेरे वो इटली से हैं। तो हम्म। उन्होंने अपने एक जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की उन्होंने मेरे को स्टोरी बताई कि ऐसे-ऐसे वो भी तेरे ही जैसे था, उसको बताना पड़ता था बट कि तू कितना स्ट्रॉन्ग है और तू कर सकता है ऐसे करके और तू भी सेम ऐसे ही है और तू पूजा तू सच में कर सकते है। उन्होंने मतलब इतना ये बताया। फिर जब मैं रिंग में गई, मैं खेलने लगी उस लड़की के साथ, तो मेरे को यूँ हुआ कि पूजा तू सच में कर सकती है, तू मार सकती है, तू जीत सकती है इससे। और रिंग में ही मैं अपने आप को बोल रही थी, कम ऑन पूजा तू कर सकती है। तो हाँ, उस टाइम पे ही हुआ था और वो जो जीत थी मेरे लिए आज तक की सबसे शानदार जीत थी मेरे लिए। वाह! और आपने जो बताया जिस तरीके से वो भी कुछ स्टोरी से कम नहीं था। सो आप मतलब आई थिंक बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आपका कोचिंग ट्रेनिंग चालू होने से ये सब फ़िल्मी चल रहा है आपका लाइफ हाँ, में। मेरा अब तक पूरा फ़िल्मी चल रहा है। और हाँ। इसी फ़िल्मी अंदाज़ में हम लोग वेट भी कर रहे हैं कि अभी टोक्यो 2020 में आप कब जाएँगे और ये स्टोरी 70 एमएम पिक्चर कैसे बनेगी? अ, देखिए, मैं एक बार सोचती थी कि हालाँकि मैंने जैसे कि बच्चे होते हैं, उनको घर की तरफ से स्ट्रगल करना पड़ता है या फिर कुछ ऐसे, तो मेरे को ऐसा कभी कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। तो मैं कई बार यूँ सोचती थी कि यार अगर मान लो मैं कभी कोई अच्छी प्लेयर बन जाती हूँ और मेरे ऊपर मूवी बनती है, तो मेरी तो कोई स्टोरी ही नहीं होगी। ऐसे करके मैं बहुत बार मैं ये सोचती थी, लेकिन अब जब मैं बातें करती हूँ, तो मुझे यूँ लगता है कि हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अरे ये तो बहुत बड़ी स्टोरी है मतलब और इसमें ऐसे नहीं है कि सिर्फ स्ट्रगल नहीं इसमें मसाला है। ये स्टोरी हाँ, के मैं पीछे सोचती थी कि जो स्ट्रगल होता है बस उसी पे मूवी बनती है। मेरे को यूँ था कि ये जब सब ईज़ी चल रहा है तो इसमें क्या मूवी बनेगी? आपकी तो पूरी मसाला मसाला मूवी बनेगी और हम लोग वेट करेंगे उसके लिए। सो सो पूजा जब आपने जैसे आपने बोला कि आपके नेशनल चैंपियनशिप होगी उसके बाद इंटरनेशनल में आपने एंट्री की। फर्स्ट टाइम जब आपने तिरंगा जैकेट पहना और जब वहाँ पे गई तो वो फील कैसा था? देखिए फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी तो हाँ 2011 में मैं गई थी और वो जो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, हाँ मुझे काफ़ी मतलब कि फर्स्ट टाइम मैं गई थी तो मुझे काफ़ी हाँ, अजीब-सा एक डर जो होता है वो था मुझे और वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम अपने इंडिया के लिए मैंने सिल्वर मेडल जो है यस। लिया था। हाँ, लेकिन उस टाइम पे क्या है कि मैं हर टाइम मैं हर बात, हर सिचुएशन को अपने कोच के साथ मैं डिस्कस करती थी, जिसके साथ भी मेरी बाउट होती थी, जो भी अगर मेरे को यूँ होता था ना कि बाउट से पहले मुझे डर लग रहा है, तो वो भी मैं उनको फ़ोन करके यूँ बताती थी कि सर अभी मुझे डर लग रहा है। मतलब मैंने हर बात उनको बताई और पूरा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। वेरी नाइस एंड ये सब तो आपने अलग-अलग चीज़ें बोली लेकिन उस स्टोरी में और एक क्या बोलते हैं ट्विस्ट भी था 2016 जब क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। तो वो जी। पीरियड कैसा था और आपको क्या लगा कि क्यों नहीं हुआ? एंड ऐसी कौन-सी चीज़ थी जो आपको उस चीज़ में से बाहर लेके आई, वो डिसअपॉइंटमेंट से? देखिए, वो इसके लिए मैं बोलूँगी कि कहीं न कहीं मेन रीज़न हमारा फेडरेशन का ना होना था उस टाइम पे। इवन मैं ही क्या कोई भी लड़की क्वालीफाई नहीं कर पाई थी करेक्ट। हमारे बॉक्सिंग में। और उस टाइम के बाद मेरा बॉक्सिंग से पूरा मन हट गया था क्योंकि बहुत ऐसा हो रहा था कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी अच्छी अचीवमेंट नहीं आ रही थी क्योंकि हमारी फेडरेशन बैन थी और पूरा मैं उस टाइम पे मैं हार भी गई थी तो मेरे को यूँ था कि अब मुझे बॉक्सिंग नहीं करनी है मतलब अगर करनी भी है तो मुझे अभी फिलहाल मुझे रेस्ट चाहिए। मेरा पूरा मन भर चुका था बॉक्सिंग से और उसके बाद मैंने आके अपने कोच को भी बोला कि अभी मुझे बॉक्सिंग नहीं करनी है, मैं रेस्ट करना चाह रही हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है तू जितना रेस्ट चाह रही है 2 महीने 3 महीने तू रेस्ट कर और उसके बाद में हम फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे जब तेरा मन होगा। हुँ, हुँ। तो इतना मैं पूरा यूँ हो चुकी थी कि अब मुझे नहीं करना मतलब और वो मुझे रेस्ट इतना अच्छा लग रहा था। तो ये 2016 की ही बात है। उसके बाद एकदम से कोच ने मुझे बताया कि अभी स्टेट चैंपियनशिप होनी है, उसके बाद अभी नेशनल होगा, तो अभी तू तैयारियाँ शुरू कर दे। तो मैं स्टेट चैंपियन भी हो गई थी उस टाइम पे और फिर ये नवंबर की बात है, दिवाली थी उस टाइम पे हुँ, हुँ। और हम पटाखे जला रहे थे। तो जो पटाखा है मेरे हाथ में ही फूट गया था। अरे बाप रे! हाँ। हाँ, तो वो बहुत बड़ी इंजरी मुझे हो गई थी हाथ में। तो क्या था कि 3 दिन बाद मेरी जो है नेशनल चैंपियनशिप स्टार्ट होनी थी। तो मैं वहाँ पे जब मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए, मैं बहुत चिल्ला-चिल्ला के रोई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल गया था मेरा हाथ। और वहाँ पे मैं डॉक्टर को उस टाइम पे मैं दर्द नहीं देख रही, मैं ये बोल रही डॉक्टर को, "डॉक्टर 3 दिन बाद मेरी चैंपियनशिप है, क्या मैं जा सकती हूँ?" तो डॉक्टर मेरा हाथ देख के बोल रहे कि, "तू 3 दिन तो क्या, तू 3 महीने भी नहीं जा सकती।"
तो उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मेरे को पूरा 6 मंथ घर पे रहना पड़ा था और हाथ की सर्जरी करवानी पड़ी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा जल गया था मेरा। ओह! एंड मतलब एक जगह वो 2016 का डिसअपॉइंटमेंट था, उसके बाद 3-4 महीने के बाद ये वाला ये चीज़ हो गई। सो आई थिंक वो एक पीरियड था जो पूरा टफ पीरियड था मेंटली। सो जी। आपको क्या लगता है कि मेंटल कंडीशनिंग कैसे हेल्प करता है और अब आप खुद को मेंटली कैसे प्रिपेयर करते हो जब जब ऐसे लोज़ आते हैं? लोगों को हाइज़ आते हैं, उससे उभरना अलग अलग चीज़ होती है, लेकिन जो लोज़ में उभर के आता है, तो वो आप कैसे दे ट्रेन करते हो खुद को? देखिए मैं एक तो मैं साफ ये कहना चाहूँगी जैसे कि गेम जो है वो हमें इन सब चीज़ों से उभरना सिखा देता है क्योंकि बहुत सारे हमारे मतलब गेम में ऐसे मोमेंट आते हैं, कभी हम लूज़ कर जाते हैं, कभी हम जीतते हैं तो वो खुशी, कभी हम हारते हैं तो वो एकदम से वो दुःख। तो ये अप एंड डाउन्स हमारी इसमें चलते ही रहते हैं क्योंकि एक टूर्नामेंट नहीं, बहुत सारे टूर्नामेंट ऐसे होते हैं कि एकदम से हमें उतनी खुशी मिलती है। कभी हम हार जाते हैं तो उतना ही हम ऐसे। तो मुझे यूँ लगता है कि गेम की वज़ह से हम पूरा मेंटली भी हम पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हम प्रिपेयर रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए भी कि हाँ, कि एक मैच के दौरान कुछ भी हो सकता है। हो हुँ, सकता है हमने पूरी तैयारियाँ भी की हों, हमारी पूरी अच्छी प्रिपरेशन भी मतलब पूरी अच्छी हो, लेकिन फिर भी हम लूज़ कर जाते हैं कि कोई न कोई ऐसी कमी रह जाती है हमारे में। तो वो क्या है कि उस टाइम पे हमें ये पता चलता है कि हाँ, ये तो मेरी पूरी तैयारियाँ थी, ये मैंने अच्छा किया, लेकिन ये कमी रह गई, अब इसमें मुझे स्ट्रॉन्ग होना है। तो पूरा इसमें हम मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। और दूसरा जैसे आपको पता ही है मैं लक्ष्य फाउंडेशन से मैं स्पॉन्सर हूँ, हुँ। तो उन्होंने भी हमें मेंटल ट्रेनर जो है प्रोवाइड करके रखा है, तो उससे भी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। यस एंड आपने जिस एसोसिएशन का नाम लिया वो वन ऑफ द बहुत प्रेस्टिजियस एसोसिएशन है लक्ष्य फाउंडेशन, लक्ष्य स्पोर्ट्स फाउंडेशन। जी। और बहुत बहुत उम्दा एथलीट उनके पास है और उनका काम भी बहुत दिल से चलता है। सो उनका अदर देन मेंटल जो आपने बोला कि उनका आपके जर्नी में कंट्रीब्यूशन कैसे रहा है लक्ष्य स्पोर्ट्स का? देखिए उन्होंने 2011 से मैं लक्ष्य से स्पॉन्सर हूँ और एक मैं स्पॉन्सर्स के बारे में मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, जैसे कि जितने भी मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन जितने भी जो स्पॉन्सर हैं ये अ, अच्छे टाइम में बच्चों को सपोर्ट करते हैं। जब ये देख लेते हैं कि हाँ, अब बच्चे की अच्छी अचीवमेंट आ रही है, उसी को पकड़ते हैं वो, उसी को सपोर्ट करते हैं ऐसे करके। लेकिन लक्ष्य फाउंडेशन जो है वो 2011 से मेरे साथ में है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2016 में मुझे इंजरी हो गई थी और मैं पूरा 1 साल मैं बॉक्सिंग से दूर थी। उसके बाद मेरे शोल्डर में भी इंजरी हो गई थी। तो कभी उन्होंने मेरे को प्रेशर नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए या फिर उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। आज के दिन क्या है मुझे और भी अच्छे-अच्छे जो है ऑफ़र मिल रहे हैं लेकिन अ, मैं ये चीज़ कभी नहीं भूल सकती कि उन्होंने मेरा जो बुरा टाइम था उस टाइम में भी उन लोगों ने मेरा साथ दिया है। तो हाँ और अभी जो है इंडिया का जो बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट है मिस्टर रायन फर्नांडिस उनके साथ उन्होंने मेरा टाई अप करवा रखा है। तो काफ़ी अच्छा मुझे वो सपोर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड और यही हम लोगों ने जो सुना हुआ है लक्ष्य के बारे में और मैं उनके साथ जुड़ा भी हूँ तो अलग-अलग चीज़ों पे वो जो मिलता है कि बेसिकली एक फैमिली जैसी फीलिंग है कि दे टेक केयर ऑफ जी। यू कंप्लीटली। सो कभी हाँ, ऐसा नहीं हाँ। लगता कि आप कोई किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, प्रेशर आ गया, अभी परफॉर्म नहीं किया, निकल जाओ। हाँ, बहुत होता है। ऐसे मतलब क काफ़ी मैंने स्पोर्ट्समैन से सुना है कि अब वो ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं इस वेट में नहीं खेलना या फिर ये नहीं करना, वो नहीं करना या फिर अभी अचीवमेंट नहीं आ रही है तो उनको छोड़ दिया है। ऐसे करेक्ट, बहुत ऐसे होता है। लेकिन लक्ष्य के साथ मैं पिछले 9 या 10 साल से हूँ, ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ। उन्होंने मेरे बैड टाइम में मुझे पूरा सपोर्ट किया है। यस। सो पूजा ये आपने जैसे बोला कि 12th के बाद आपने किया, तो अ एजुकेशन, स्पोर्ट्स इसके बारे में और आप हरियाणा से आते हो, एक अलग अलग वहाँ पे जो गाँव है, वहाँ से कुछ अलग ये होगा प्रेशर्स होंगे। सो आपको क्या लगता है कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन और स्पोर्ट्स ये कैसे होता है और एजुकेशन का फ़ायदा कैसे होता है? देखिए, अगर आप एक हाई लेवल की आप सोचते हैं, तो दोनों चीज़ें एक साथ मुझे नहीं लगता चल सकती हैं। हाँ, आप हुँ, एक नॉर्मली आपको स्टडी भी करनी है, लेकिन आप एक ही चीज़ में अपना फुल दे सकते हैं। हाँ, अगर आप हुँ, मान लो आप स्टडी में कर रहे हो, तो आपका नॉर्मल चल सकता है, क्योंकि इतना नहीं हो सकता जैसे कि मान लो हम बॉक्सिंग करते हैं, तो उसमें अकेला हम ट्रेनिंग पे ही हम बेस्ड नहीं हो सकते। मैं जो मानती हूँ 3 चीज़ें जो है इसमें जो कि रिकवरी,
और न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग, ये तीनों चीजें आपकी इक्वल होनी चाहिए। मान लो 100% में है तो आप 33 आप लेके चलो इन सब चीजों को। तो ये चीजें आपकी इक्वल चलेंगी तो ही आप किसी चीज में आप बेस्ट कर सकते हैं। हम्म, तो ऐसे ही आप मतलब कि स्टडी के लिए आप टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन आप पूरा टाइम उसको नहीं दे सकते, क्योंकि आप 100% आप एक ही चीज में कर सकते हैं, ना कि आप दोनों में। करेक्ट। लेकिन बहुत सारे एथलीट से हम लोगों ने सुना हुआ है कि स्पोर्ट्स का उनके एकेडमिक में उनके लिए इजी था एकेडमिक, बिकॉज जो फोकस एज अ एथलीट आप डेवलप करते हो तो एकेडमिक इजी हो गया उनके लिए जो भी किया है। सो बट एट द सेम टाइम हम लोग जो मानते हैं कि एक एथलीट की करियर होता है वो एक पर्टिकुलर जल्दी खत्म होता है, मतलब कॉर्पोरेट लोगों का करियर बहुत लंबे चलते रहता है, एक जल्दी खत्म। सो उसके लिए एज अ सेकंड चांस लाइफ में जो होता है उसके लिए एजुकेशन कैसे हेल्प करेगा? जैसे देखिए, हाँ, बॉक्सिंग में ये चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, मैंने कभी जॉब के बारे में नहीं सोचा था, और मैंने 2012 में मुझे जॉब ऑफर हुई, तो वो रेलवे से मुझे जॉब ऑफर हुई थी, और उस टाइम पे सैलरी भी इतनी नहीं थी। तो फिर मैं अपने कोच को बोल रही थी कि मुझे नहीं चाहिए, मैं अभी अच्छे से ट्रेनिंग करना चाह रही हूँ, मैं इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहती। तो मेरे कोच ने मेरे को समझाया कि कल को मतलब कि बॉक्सिंग में कोई भी ऐसी इंजरी हो सकती है कि ताकि तू दोबारा ट्रेनिंग मतलब दोबारा बॉक्सिंग में ना भी आ सके, दोबारा अपना करियर ना बना सके। तो आज जो अपॉर्चुनिटी तुझे मिल रही है, तुझे उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ताकि कल को तू सिक्योर रहे। तो राइट। इस चीज को लेके मैंने वो जॉब है जो एक्सेप्ट करी थी। तो इसमें मैं पढ़ाई का मैं कुछ नहीं बोल सकती। जैसे कि हमारे गेम में जो है वो पूरा गेम बेस पे ही हमें जॉब जो मिलते हैं। जैसे कि अभी मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में करेक्ट। इंस्पेक्टर हूँ, तो वो भी मुझे मेरे अचीवमेंट के बेस पे ही ऑफर हुई है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, इससे पहले मैं मान लो स्टडी करती थी तो उसमें मैं अपना 100% देती थी। करेक्ट। अभी मैं जो गेम में हूँ तो उसमें मेरा 100%। ओके। तो जो भी कुछ भी कर रहे हैं उसमें अपना 100% देना चाहिए। हाँ, आई थिंक दैट इज वो सबसे द बेसलाइन इज दैट कि जो भी करे उसमें 100% दो। आई थिंक जी। कोशिश करेंगे सिंसियरली तो कभी हार नहीं होगी, उसमें उसमें जीत हमेशा आती रहेगी। सो आपने जस्ट टच अपॉन किया कि रेलवेज के बाद अभी अब आप इंस्पेक्टर हो विद हरियाणा स्टेट में इनकम टैक्स में। सो जी। वहां पे कैसे लगता है कि अभी मैं ओलंपियन हूँ, मैं ओलंपिक के लिए जा रही हूँ और मैं एशियन चैंपियन हूँ, मैं साउथ एशियन चैंपियन हूँ, ये सब है। तो आप वो एनवायरनमेंट कैसे रहता है? बिकॉज़ बहुत सारे एथलीट गवर्नमेंट में अलग-अलग सेक्टर में काम करते हैं, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसे रहता है? देखिए, मैंने अभी भी जब मैंने बताया कि आपको, मैं हमारे जो सीसी थे, चीफ कमिश्नर, उन्होंने मीटिंग के लिए काफ़ी प्लेयर्स को बुलाया हुआ था। तो सबका जो इंट्रोडक्शन हो रहा था, उसमें मतलब मैं अकेली एक प्लेयर थी जिसने ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया है। या फिर मैक्सिमम प्लेयर जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो जैसे बता रहे थे कि हाँ, मैं इस टाइम पे खेला था या इस टाइम पे खेला था। वो था में बता रहे थे सब। तो हुँ, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैक्सिमम ऐसे थे कि जिनको इंजरी हो गई थी, उन्होंने छोड़ दिया, या फिर कुछ लोग ऐसे भी थे कि उनको जॉब मिल गई थी, उससे वो सैटिस्फाई हो गए थे, हुँ, हुँ, और वो आगे इसमें नहीं, गेम में नहीं कर पा रहे थे। तो फिर वहाँ पे एक स्पेशली मेरे को ऐसे मतलब ऐसे ट्रीट किया जा रहा था कि अकेली डिपार्टमेंट में लड़की है जिसने ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया है और आगे भी मतलब कर रही है, तो मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था। लेकिन एक ये भी मुझे गंदा लग रहा था कि काफ़ी प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो सैटिस्फाई हो जाते हैं हुँ। जब उनको जॉब मिलने के बाद। तो ऐसे सैटिस्फाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ किया है तो आज उनको जॉब मिली है, तो वो और भी इससे अच्छा कर सकते हैं। आई थिंक ये सोच बहुत अच्छी है, और जो हम लोग सब बोलते हैं कि इंडिया को स्पोर्टिंग नेशन बनाना है। सो बट अलग-अलग लेवल पे अगर स्पोर्ट्स के आइकन्स बनाने हैं, हीरोज़ बनाने हैं, शीरोज़ बनाने हैं, मतलब अलग-अलग लेवल पे बनाने हैं, तो उसके लिए ये स्टोरीज़ आनी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपका क्या कॉन्सेप्ट है? बिकॉज़ हम लोगों ने देखा है कि हरियाणा, पंजाब वहाँ से बहुत सारे एथलीट आते हैं इन एथलेटिक्स एंड इसमें। सो आपको क्या लगता है कि इंडिया को अगर स्पोर्टिंग नेशन बनाना है, तो उसके लिए क्या चेंज करना पड़ेगा? जैसे बॉक्सिंग में मैंने बहुत देखा है कि बहुत पुअर बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और उस टाइम पे उनकी सोच यही होती है कि हम खेलेंगे, हम जीतेंगे, और तो उसके बाद में हमें जॉब मिलेगी। हुँ, हुँ। इवन जो पूरा यूँ भी सोचते हैं कि आर्मी में मिल जाएगी, या फिर बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें उनको जॉब मिल जाती है। करेक्ट। तो मैक्सिमम बच्चे यही सोचते हैं कि हम खेलेंगे तो हमें जॉब मिलेगी।
तो मैं यही सोच रही हूँ कि स्टार्टिंग से बच्चों को जैसे अभी तो जैसे खेलो इंडिया ये सब बहुत हाँ, ऐसे आगे आ रहे हैं ऐसे करके, लेकिन बच्चों की जो है वो नर्सरी तैयार करनी चाहिए, उसमें जो बच्चों का टैलेंट देखना चाहिए। ऐसे लग रहा है कि हाँ, ये बच्चा इस गेम में ऐसे आगे जा सकता है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को पूरा अपना ध्यान देके उसके ऊपर उसकी हर मतलब उसकी हेल्प करनी चाहिए, ताकि उसको ये फ़ील ना हो कि मैं ऐसे करूँगा तो मुझे जॉब मिलेगी, ताकि वो पैसे के लिए ना सोचे, ताकि हुँ, वो सोचे कि हाँ, इसमें मेरा अच्छा करियर भी बन सकता है और मैं अपने देश के लिए मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो ऐसी हेल्प करनी चाहिए। आई थिंक बहुत बहुत उम्दा बात की आपने इस चीज़ के बारे में कि नर्सरी, वो जो वर्ड आपने यूज़ किया, बच्चों की अलग-अलग ट्रेनिंग की नर्सरी चालू कर रहे हो, जहाँ पे वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाए। बिकॉज़ स्पोर्ट्स के बहुत फ़ायदे हैं। आप प्रोफेशनल एथलीट बनो ना बनो, लेकिन जो एटीट्यूड तैयार होता है आपका एज़ अ स्पोर्ट्समैन बचपन से, आई थिंक वो आपकी आपके लिए बहुत हेल्प करता है। सो पूजा, एक लास्ट 1-2 सवाल, लेकिन उसमें से एक तो सवाल है जो मेरे को पूछना है। हम लोग को आंसर भी मालूम है, लेकिन फिर भी पूछना है, आपका ड्रीम क्या है? मुझे पता था यही पूछोगे। देखिए, ड्रीम मेरे जो है मेरे टाइम टाइम पे मेरे चेंज होते रहे हैं। ओलंपिक से पहले जो मेरा ड्रीम था, मुझे यूँ था कि मुझे अर्जुन अवार्ड लेना है और मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है। चाहे किसी भी वेट में मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूँ, मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनने का एक मुझे मतलब मेरा ये ड्रीम था। लेकिन अभी जब मैं ओलंपिक क्वालीफाई कर चुकी हूँ, तो मेरा वही जो सबका एक ड्रीम होता है, वही मेरा ड्रीम भी अब बन गया है कि मैं ओलंपिक मेडल अपने देश के लिए लाना चाहती हूँ और अपने लिए लाना चाहती हूँ। यस, आई थिंक बहुत, एंड और वो हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि वो ओलंपिक में अपना नेशनल एंथम कब बजे और वो ऊपर से फ्लैग कैसे नीचे आए, हम लोग भी वेट कर रहे हैं उसका, उस चीज के लिए। वो अलग अलग ही प्राउड फीलिंग होती है, और वो इमेजिन भी नहीं कर पाते, वो लेवल की फीलिंग होती है। मैं इमेजिन कर पा रही हूँ। एंड दैट इज व्हाट वी वांट एग्जैक्टली। सो ये चीज जो आपने अभी बोली, बहुत हल्के से बोली कि मैं इमेजिन कर रही हूँ, आई थिंक वो आपका फोकस क्योंकि दिखा रहा है। हाँ, क्योंकि मैंने हर जगह पढ़ा भी है और मैंने ये सुना भी है कि जो हम इमेजिन करते हैं, जो हम हर टाइम पे हम सोचते रहते हैं, तो वो होता है हमारे साथ। अगर मैं हर टाइम मैं यही सोचूँगी, यार कहीं मैं हार गई तो या फिर कहीं मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो वही हो जाएगा। अगर मैं हर टाइम में ये सोचूँगी, हाँ, मुझे जीतना है, मैं जीतूँगी, मैं अपने आप को पोडियम पे खड़ा देखूँगी और मैं तो फिर क्या होता है कि मैं उसके लिए, उस सपने को सच करने के लिए मैं वैसी ही ट्रेनिंग मैं करूँगी। बहुत तो बहुत मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। बहुत, एंड आई आई थिंक इसमें बहुत लर्निंग्स है। आपने जो एक अभी जो 2-3 स्टेटमेंट जो बोले, उसमें इतनी सारी लर्निंग्स है कि अगर जो अचीव करना है, अगर आप इस पूरे विजुअलाइज करोगे, इमेजिन करो कि ये ऐसा होने वाला है, आई थिंक पूरा वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, पूरी कायनात उस चीज को दिखा कर तो क्या कर देगी मिलाने वो। में लग जाती है। मिलाने में लग जाती है। सो आई थिंक आप अगेन थोड़ा सा फिल्मीनेस आ ही है, लेकिन यस। लेकिन बहुत हाँ, हाँ। बहुत एप्ट है। सो पूजा, मेरा आखिरी सवाल आपको, व्हाइल ग्रोइंग अप, सम पहले बहुत प्रॉब्लम्स थी, लेकिन बाद में अच्छा हो गया एंड आपने बहुत अचीव किया, लेकिन ऐसी कौन सी एडवाइस है जो आपको मिली, जिसके आपकी इस जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट आया, और वो आप नए जनरेशन को पास ऑन करना चाहोगे? देखिए जैसे मैंने जब बॉक्सिंग स्टार्ट की तो मैंने खुद अपने कोचेस और मेंटर को मैंने खुद चूज़ किया, मैंने खुद ये देखा। जैसे कि आजकल क्या है कि बहुत लोगों में पहले से ही वो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि उनको गेम करवाना है या फिर ये। तो फिर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इतनी समझ नहीं होती है। तो इसलिए माँ-बाप को ये सोचना चाहिए कि वो अ, उनको पूरा देखना चाहिए कि कहाँ पे, क्योंकि अब अगर एक बॉक्सिंग की बात करें तो एक भिवानी में ही आप देखोगे तो 10 से 12 अकेडमीज़ हैं बॉक्सिंग की। तो उनको चूज़ करना चाहिए कि कहाँ पे उनका बच्चा अच्छा कर सकता है और कौन-सा कोच उनके लिए, कौन-सा मेंटर उनके लिए अच्छा रहेगा। तो ये सब अपने जो बड़े हैं उनका फर्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चे के लिए सही से चूज़ करें ताकि उनका बच्चा आगे जा सके। ओके, आई थिंक बहुत ही सही बात की, एंड बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके, अलग अलग टॉपिक, एंड लेकिन जैसे बोला कि हम लोग ये स्टोरी का 70 कब होगा उसका वेट करेंगे, एंड बहुत बहुत बधाइयाँ, एंड विश यू ऑल द बेस्ट पूजा, एंड यू आर ट्रू टू द नेम पूजा रानी, रानी ऑफ द इंडियन बॉक्सिंग सर्किट, एंड थैंक यू। एंड
विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, और हम लोग वेट करेंगे उस वो जो आप ड्रीम की बात की उसके अचीवमेंट की हम लोग वेट करेंगे. जी जरूर, थैंक यू सो मच. Thank you, Pooja. Take care. Our today's episode is in association with Lakshya Sports. Please visit lakshyasports.com and contribute in this journey. Help them achieve the vision to aid the athlete in achieving Olympic glory. Thank you for watching. Thank you for liking and thank you for sharing. But please do subscribe to Sportsy Says and help us spread the word about Sportsy. We go with the same handle, Sportsy Says, across all the social media platforms.